अवेलेबिलिटी, जैसे कि गूगल में भी आसानी से मिल जाता है वो डॉक्यूमेंट, क्या यही डॉक्यूमेंट्स हमको लिए सही रहेगा या फिर आपके साथ में शेयर करके? शायद आप ही ने दिया ना, सर ने दिया ना? सर ही दिए, तो फिर इसलिए मुझे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है। या एच बी पी एन एल की एक्चुअली में डेवलपमेंट की है, तो उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहते हैं क्या कोई और प्रैक्टिस तो नहीं है, या इसी प्रैक्टिस में? आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं टीएससी का कंसेप्ट क्या है, ये मेरे को अंग्रेजी में पढ़ाना। नहीं। आप मेरे को बताओ मैं टीएससी आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं सिस्टम में जो मैपिंग कर रहे हैं हम, उससे लिंक कैसे है उसका डाटा कैसे, क्योंकि ये वाला डाटा कहीं बाहर से नहीं आ रहा, ये हमारे सिस्टम से अच्छे आ रहा। तो पहली बात तो जो बंदा यहाँ पे मोबाइल और वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, डेवलपर जैसे कंसल्टेंट है, उसको भी होना चाहिए, वो समझे कि इस डाटा को कहाँ से लेके अपनी सारा सबमिशन कर, क्या डाटा चाहिए आपको पता है आपको क्या चाहिए इसमें। हाँ, इसमें जो कितनी ऐसी लाइंस हैं, कितना? वही रतन जी, मैं थोड़ा रतन जी, हाँ ऐसे कितनी ऐसी लाइंस हैं, हाँ जी कितनी ऐसी लाइंस हैं, लाइन से कितने किलोमीटर्स हैं, क्या? somebody is speaking I think। हाँ, यस सकीर। I just wanted to introduce myself. I'm Shakir here, and I was actually working on calculating the TSA. तो मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, and then we can continue further. हाँ, तो basically this transmission system availability, we have taken the information from an article that is provided by Central Electricity Reliability Council, CRC guidelines, based in 2019 Is this the document. same one which I shared with the? Yes, same. Is this the same one which I shared with Anand? Yes, same Document that you shared with Ratanji. So basically, it's a very fairly simple formula in understanding the transmission system availability, and we understand that HPPNL does this kind of calculation on a monthly basis because they are obligated to submit this value to RLDC, and so there is a lot of data that could be available with you, and we are trying to understand it from our perspective so that you can help us and correct us if there's something that we have not understood correctly. So in terms of transmission system availability, the formula is fairly simple. We are trying to understand very key components in the system for each substation on a monthly basis. So we are trying to look at the number of lines that is available and the availability of that number of lines during the period that we are calculating. For example, if we are calculating it for the entire month, then we are trying to see if the line was available for the entire month, and if not, then how many days in the month was it available. So this formula is basically fairly simple. You can see it, and maybe you are also using these formulas existing. So in this formula, we are just looking at the components such as AC lines. We are looking at bus reactors connected to that substation. We are looking at total number of ICTs, interconnecting transformers, a total number of static VAR compensators, total number of static synchronous compensators. And we are trying to calculate what is the availability of that transmission system for the month. Now this calculation is for AC system only. I'm not sure if there is a DC system in HVPNL, but this is what we have understood for calculation of AC system. Now if there is something else that needs to be added, or if there is availability of additional data, then those kind of guidelines is what we are looking for. इसमें पता क्या कौन थे? Shakir, but basically what I understand from your discussion is that because you understood the formula and you can develop the analytics. Correct, sir. So if there are any changes in this formula that I have to convey, like correct, are we using some other methodology or something else? Yes, sir. So, see, considering for this I would like to tell you that this work is being done by a separate office. Transmission system availability calculation and all is being done by a separate office. So I also need to consult with them before giving you any confirmation on this TSA. Okay. However, I would also like to point out one thing, ki not only the calculation part, how this data is coming from your system is also important. Say for example, I say total number of AC lines. So your question should be specific in this, ki when we say the total number of AC lines, then is it a circuit, one circuit we are talking of, or are we talking of a double circuit line,
So we need to be very specific while designing these formulas for calculation of TSA. I Hold agree, on sir. for a second. I agree. Totally Hold on agree. for a second. So those kind of definitions is what we are looking एक मिनट forward होल्ड for. करिए. Yes, sir. So considering that, yes, Sakit, please hold on the Yeah. call and just मेरे पास तो 2 बार तो आ ही गया. एक्सपीरियंस है अपने पास नहीं. कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ बात. हाँ, करता हूँ. शुभम, शुभम, तेज बंधु को बुलाइए एक बार. यस सर. अच्छा, टॉकिंग ऑफ आवर सिस्टम, right, sir. मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे है स्पेसिफिकली. व्हेन वी से अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एसी लाइंस, तो ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम? अपने सिस्टम जो हम मैपिंग कर रहे हैं. जो आपके ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं ना, हाँ. उसमें से निकाल के लाएंगे. क्या निकाल के लाओगे? कितने सर्किट किलोमीटर से लाइन से उसके हिसाब अरे से. वो तो आ गया नंबर ऑफ एसी लाइंस. ओके. सेक्टर किलोमीटर चाहिए भी नहीं आपको. टोटल एसएमए सर्किट किलोमीटर लाइंस है, कितने इनपुट लाइंस है. ओके. दूसरे पॉइंट में क्या चाहिए? जो ये रोहतक वाली इंस्पेक्शन लगी थी, ये किसने लगाई थी? Opinion सी टोटल इतने किलोमीटर है, जिसमें से इतने किलोमीटर बना. अब वो केस तो नहीं सिस्टम पूरे पूरे बड़ा है. या तो मिस्टेक करके जनरली हम हाँ जब निकालना है आपको सब स्टेशन निकाल दिया. मेरे पास पूरा डेटा है. तो जो सब स्टेशन का एक स्पेसिफिक लेकर के एक सब स्टेशन, उस सब स्टेशन कितने नंबर ऑफ स्टेशन का थोड़े ना निकाल सकते हैं. मैं अच्छा, एग्जाम्पल कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी लेकिन चलूंगा तो बड़ी इन्फिनिट लोग पर ठीक है. नहीं सर, 2 केस तो निपट गए. तीसरे केस में आप ये रोहतक वाला रोहतक वाला खत्म हो गया, उसने फोन कर दिया बगाना इधर वाला जाना है ना. मैदान वाले में और कविता मैडम वाला नहीं पड़ गया. मैदान वाले का आ जाओ, क्या उसमें कैंसिल करना है. क्या बोलती है मैदान वाला. तीसरा होगा बढ़िया सर. हाँ जी, हाँ जी. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो कंसर्न ऑफिस ही कंफर्म करता है मेरे को. और तो मेरे चीफ ने जिसने लगाई होती है वही कंफर्म करता है. मेरे पास अथॉरिटी नहीं कि मैं कैसे कर दूँ. हाँ हाँ सर, वो भेज रखा है. वो जो चीफ साहब है वो ये कहते भी ये मोहाली की इंस्पेक्शन है, बहुत नजदीक है, एक दिन जाकर आएगा शनिवार इतवार को. तो इसमें इशू क्या है? फिर इसको ऐसा करते हैं ना सर, इसको परमानेंट एग्जाम करवा लो आप डायरेक्टर से कह के कि ये बंदे को स्क्वेयर नहीं कर सकता, परमानेंट एग्जाम करा दो इसको लगाए. क्योंकि अगर आज भी नहीं भेज सकते लीन पीरियड में, फिर गर्मी में तो बिल्कुल नहीं भेज पाएंगे. हाँ बस फिर मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ. फिर मैं वही तो कह रहा हूँ सर, एक आप इसको परमानेंट एग्जाम करा लो, खत्म करो कहानी. और फिर सर वो मेरे को कहने का फायदा नहीं. मैं तो सॉफ्टवेयर में चेंज करता हूँ, जो कंसर्न ऑफिस लगाता है वही बताएगा मेरे को कि हटानियाँ नहीं हटानी. चीफ ऑफिस ही है वो, क्या कहते हैं बस वो बस सॉफ्टवेयर में तो सर मैं तो हटाता ही हूँ. सिर्फ मेरे को तो इंटीमेशन वहीं से आती है इसको हटाना. मैं कह रहा सर इसमें तो मेरे को तो इंटीमेशन आती है कि हटाना है नहीं हटाना. बस मेरे पास तो इतना ही रोल है.
तो ऐसा ही मेरे को कहने का फायदा नहीं है कोई। ये आप कंसर्न इंजीनियर को बोलो, मेरे को वकील साहब बोलेंगे टाड़े में हटा दूंगा। पूछ लूंगा मैं बात कर लूंगा, पर करने साहब ही कहेंगे हाँ ना वही करेंगे, प्रोग्राम नहीं करें। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वाला है कहना 3 लाख से पे ही सर मैं चीज को कह दिया कि काट के दोबारा। सर मतलब उनसे मेरी बात हुई थी 10 बजे, वो कह रहा था उसकी मेल, उसी की मेल सीधी हमारे पास आ रही है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है। क्या करने हाँ, और वही उसने खुद बोला है मुझे कि मैं अपने चीफ से करवा रहा हूँ। का बात करता है तो पहले कुछ नहीं करता। तो अभी के लिए जो हमारे पास जो भी जब पूरा डेटा बन जाएगा तो हम किसी एक सब स्टेशन या जो किसी पर्टिकुलर डिवीजन में 4 सब स्टेशन है 10 सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन के लेकर के हम लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके हमारे पास इजीली डेटा अवेलेबल हो जाए उस तरीके। सर आप ना अप्रोच गलत कर रहे हो, आप समझो एक चीज को। बताएं फिर कैसे। आप तो सिर्फ ना इसकी बात कर रहे हो कि ये एनालिटिक्स का फॉर्मूला कैसे रन होगा, आप उसकी बातें कर रहे हो। मैं सब स्टेशन पे चेक कर रहा हूँ। आपने जब क्योंकि पता क्या है, ये किसी और सिस्टम से डाटा आना है ना, मैं आपको कह दूं कि ठीक है जी उससे ये डाटा उठाएंगे हम, उससे एपीआई लेके डाटा आप अपना कॉन्फ़िगर कर दोगे। हम इस सिस्टम को बना रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। वी ऑल्सो नीड टू सी कि नंबर ऑफ एसी लाइन्स हैं। तो आज की डेट में जो टीएसए बन रहा है आपने देखा होगा मेमोरेंडम, नहीं मैं ये तो फॉर्मूला है। ये तो फार्मूला जो आज की डेट में टीएसए की कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला मेमोरेंडम वो पकड़ो एक बार आप। हाँ, तो वो कहाँ से यही तो डिस्कशन किया आगे हम इस पॉइंट से आगे बढ़ के किस डिपार्टमेंट में किससे कोऑर्डिनेट का आगे बढ़ेंगे उसमें लेके। डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, पहले तो आपको एक मेमोरेंडम देते हैं। हाँ हाँ उस मेमोरेंडम को पढ़ो टीएसए वाले। ओके। उसमें आप देखो कि उसमें ना कैलकुलेशन कैसे कर रखी है उन्होंने। मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसमें कैलकुलेशन कैसे कर रखी है। अब उसका जो सोर्स डाटा है, उसका जो सोर्स डाटा है वो कैसा आ रहा है। क्या ये नंबर ऑफ एसी लाइन की डबल सर्कल लाइन तो नहीं गिन रहा है या सिंगल सर्कल लाइन नहीं गिन रहा है। 98% सिंगल सर्कल गिन रहा है। ये ठीक है। तो अब वो सारा देखना है। फिर हमने कहा टोटल, अब आपने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एसी लाइंस। फिर उसमें अब मेरे सिस्टम से ये कैसे निकल रही है, हमें ना ये भी फोर्स ही करना है कि आपका जो सिस्टम डिजाइन हम लोग जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन, उसमें ये अवेलेबिलिटी निकलेगी कैसे और किन किन कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगी। ठीक है। अकेला यही नहीं ना कि टीएसए का फंडा डिस्कस करके बैठेंगे उसके आगे डिस्कस नहीं तो अभी तो इनिशियल स्टेज में करके जिससे तो आगे अब उसमें लोड से निकल रही है। नहीं। अवेलेबिलिटी जब हम बात करते हैं, अवेलेबिलिटी में 2 चीजें होती हैं, शटडाउन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो शटडाउन ब्रेकडाउन से को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। वहाँ कैप्चर हो रही है नहीं हो रही है तो आप कैसे उठा के लेके आ रहे हो उसको, टाइम पीरियड लेके आ रहे हो। अब ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एसी लाइंस, कितनी एसी लाइंस अवेलेबल थी हाँ, On की। रतन जी और आप कब ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है। जैसे 1 मंथ का मैं निकालना चाहता हूँ तो उस पीरियड में कितनी थी आ सके थी। हाँ वो सेकंड पेज पे आइए ना, आप थोड़ा नीचे आइए तो और डिटेल मिल जाएगा इसमें। हाँ तो सर वैसे तो किलोमीटर भी होना चाहिए, कोई लाइन हाँ, छोटी है आप कोई बड़ी नीचे है। और भी नीचे नहीं, आइए। नहीं, ये ना फॉर्मूले में उसमें क्यों पढ़ रहे हैं, किलोमीटर सीआरसी का फॉर्मूला है टीएससी का, फिर हिसाब से बना देंगे। हाँ यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। पावर को पावर ऑन है तो बंदे से देखो। तो अभी का जो हमारे पास जो टारगेट ये था इस आपको देखो डाटा तो मिल नहीं रहा कोई भी, कहाँ है डाटा आपके पास। तो भी इन्होंने पीछे दिया हुआ था ना ऑपरेशनल डेटा में कितने ब्रेकडाउन और उसमें है थोड़ा बहुत कर लिखा हो, कितना सच्चा है कितना झूठा वो अलग बात है। नहीं यार पता क्या, पैसे मत छोड़ो, पहले तो इसी को समझ लो एक बार आप। हाँ हाँ मैं आपको एक मेमोरेंडम देता हूँ टीएसए का, ठीक है उसमें ये अंडरस्टैंडिंग गेन करो कि कैसे बनाई है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हाँ। ये एनालिटिक्स जो है, ये जो वेब मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर रहा है उस बंदे को भी पता होना चाहिए कि ये एनालिटिक्स बनना है अल्टीमेटली, ठीक है। क्योंकि उसके रेलेवेंट इनपुट्स हम तो बताएंगे, तो उसके रेलेवेंट इनपुट्स हमें डाटा एंट्री में कैप्चर करने पड़ेंगे। तो ये चीज मिल पाएगी, इधर मिलेगी कैसे, डाटा होगा उसी पर कुछ है ना। तो डाटा एंट्री में कैप्चर करने होंगे। अब क्या है कि जैसे आप ये कह रहे हो कि मैं किसी सबस्टेशन का डाटा दे दूंगा आपको, क्या डाटा दूंगा मैं आपको,
अभी जो हमारे पास मिला है वो जो सभी क्या डाटा मतलब क्या मिला हुआ है वो बता दो। बताता रहा हूँ। लॉग बुक का जो डेटा जो आपके गूगल शीट में जो उसमें कि इतने में ये इतना पावर ऑफ था, इतना ऑन था, ये इतना ही मिला हुआ है। और जिसमें कितना लोड है, कितना बताइए वो हाँ, जितने भी इक्विपमेंट्स है, चाहे फीचर्स है, बेस सबका ऑन ऑफ स्टेटस है, बस प्लस उसकी जो है एक्टिव पावर है, प्लस वोल्टेज लेवल जो भी है उसका वोल्टेज तो खैर वो मोर और लेस कांस्टेंट है। ये अब सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टीएसए निकालना है, हम्म, तो ऑर्गेनाइजेशन में कितने एलिमेंट्स हैं? दो ही एलिमेंट काउंट होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना सारे, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दो ही तरह के एलिमेंट होते हैं, ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर, जिनके बेस पे ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबिलिटी निकलती है। हमारे यहाँ हमारे रिएक्टर्स नहीं है, स्टैट काउंट्स नहीं है कोई, नहीं, ठीक है, उसको हम लेते हैं। तो हमारे एलिमेंट ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर कितना है, हम्म, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना है, कितने समय के लिए वो अवेलेबल रहे पूरे महीने में, वो फॉर्मूले में आएगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या मुझे ध्यान नहीं है, हम्म, कितने समय के लिए वो अवेलेबल रहे, टोटल समय कितना था, ठीक है। उसके बेस पे अवेलेबिलिटी निकल जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूरे जैसे आप बात कर रहे हो किसी एक सबस्टेशन का, किसी डिवीजन का, ऐसा नहीं बनता टीएसए। नहीं, मैं तो मेरे पास आप क्या कर डाटा रहे हो कि ऐसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ना, अगर आपने करना है तो एक डिवीजन का टीएसए निकालोगे, एक डिवीजन का या निकाल के सबस्टेशन का भी। कि वो उससे लॉजिक की, इस लॉजिक से मेरा बनाना, फिर आगे जब मुझे ओवरऑल होल का मिल जाएगा तो मैं ओवरऑल का बन जाएगा, ओवर कर मिल ठीक जाएगा। है। तो अब क्या है, उनके लिए जो चाहिए आपको डाटा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन एलिमेंट कितने हैं, ट्रांसफॉर्मर के कितने हैं, ट्रांसमिशन लाइन के कितने हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मर को निकाल, ट्रांसमिशन बाद में उनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके एवरेज कर देते हैं। यही फाउंड होगा, तो मुझे पुराना जब मैं करता हूँ तो ऐसे करता था, मैं पढ़ लूंगा। तो अब उसको निकालते कैसे, उसका फंडा है, उसमें टाइम का फंडा है बेसिकली, कितनी देर वो अवेलेबल रहा, टोटल कितने घंटे थे, ये फंडा है, वो कुछ है ही नहीं। टोटल इक्विपमेंट्स क्या है, मास्टर रिकॉर्ड से मिल रहा है हमको। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन वो मास्टर रिकॉर्ड से टोटल स्टैटिस्टिकल वहां से आएगा, ऑपरेशनल आपका क्या है ऑपरेशन वहां से आएगा, जो आपको ऑपरेशन की एंट्री करेंगे, ठीक है। और टोटल टाइम पीरियड आपको पता ही है, महीने में 720 घंटे होते हैं, उसके हिसाब से आप अवेलेबिलिटी निकालें। तो उसके लिए क्या है, मैं आपको टीएसए का वो देता हूँ मेमोरेंडम, मेरे से ले लेना आप। उस टीएसए के मेमोरेंडम में स्टडी कर लो कि हम आज की डेट में कैसे बना रहे हैं, डाटा कलेक्शन कैसे हो रहा है, फील्ड डाटा कलेक्शन कैसे आ रहा है। तो जब वो कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये फील्ड चाहिए हम, ठीक है। फिर हम लेंगे उसको, ठीक है, चलो, ताकि हम सारे एक सेम पेज पे होंगे, ओके। है ना। आगे कुछ और कहना चाह रहे थे, कुछ और इनपुट? सकी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, वो सही बात है सर, सही बात है। आप मेमोरेंडम भेज दीजिए सर। हाँ, मेमोरेंडम लेकर के फिर स्टडी करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसमें चलेंगे। हाँ। करेक्ट सर। ज़्यादा टाइम नहीं लगना, जल्दी कर लेंगे इसको, तो क्लोज कर देंगे। ठीक है। इस पेज में वही है जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट का है, कुछ अलग से कुछ बनाया हुआ है? उसमें सारा कुछ मिल जाएगा, आपको मेमोरेंडम दूंगा ना। अच्छा, ठीक है। वैसे वही जो मैंने आपको दिया था, उसमें कैलकुलेशन मेथड मिल जाएंगे, कैलकुलेट कैसे किया सब कुछ मिल जाएगा। से जो भी जो इस महीने हमने निकाला पिछला टीएस से वो मिल जाएगा, एक सैंपल मिल और लेना। चलिए, ठीक है, दूसरा ओके। कौन सा है? दूसरा क्या नाम है, ट्रांसफार्मर हेल्थ इंडेक्स के लिए है, एसपी। हाँ, वो डॉक्यूमेंट ईमेल पे है ना सर, वो डॉक्यूमेंट प्लीज ओपन द डॉक्यूमेंट सर। ओके ओके, मैं ये मैंने टीएसए का मेमोरेंडम नहीं है, दिस वन, टीएसए का मेमोरेंडम मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है मेरे पास। दिस वन, क्योंकि मेरे पास मैं स्क्रीन नॉट विजिबल सर। अच्छा, सॉरी, मैं स्क्रीन से दिस वन। हाँ, एक्चुअली should I share my screen? ओके, यू कैन से share it. Yeah. Is my screen visible, sir? No. Yes, sir. Okay. Yes, okay. Yeah. So basically, transformer health index is not a fairly simple formula. It is a little bit complicated. It's not taking values and putting it into one formula and taking out the transformer health index. Transformer health index has to be derived from the tests that is conducted on the transformer on a periodic basis, right?
So our understanding based on the research that we have done, I will go through them again. If there is any doubts, any suggestions that we are doing it differently, or we have not understood the concept thoroughly, we are open for suggestion and we are looking forward for suggestions. Now the methodology that we Sakir, have used, sorry to interrupt you, please enlarge the size so that we can some readable. okay. Okay. और बड़ा कर दो, एक पॉइंट. Is that fine? Okay. So there is a lot of articles and literatures that we have taken our studies from. So transformer health index, finally we want to understand the percentage value of an individual transformer, if it is healthy, if it is not healthy, and if it requires maintenance or other repairs. 1 second. Yes, Sakir, 1 second. Yeah. Okay. एक मिनट होल्ड करो. आपको नहीं बताऊँ कि एक्चुअली वीडियो को फ्रेंड ना करेगा, पूरा मिनट आपको दे नहीं सकता. प्रिंट आउट वही दे रहा हूँ, मुझे गुस्सा कर रहा है. नहीं, कब नहीं देते तो प्रिंट आउट आपको बताया है बंदा. मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? डांट का आप इधर आपको डांटता है. नहीं, लोगों को डांट लगती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तो बोलते हैं. हम तो ऐसे बोलते हैं. कौन? सकीर. शकीर. ये शकीर, चलो आप बताएं जरा प्लीज. Okay. So मैं ये बता रहा था कि transformer health index is fairly a complex algorithm. That what we have done is we have done a lot of research on different articles on what is being currently done, the modern way of calculating the transformer health index to identify if the transformer is healthy enough or not. And this is methodologies that we have researched, we have studied, and there could be other methods, but we are looking forward for your opinions and your suggestions. Now the primary, when we do a lot of research on transformers health index, there is a lot of references done by different studies, and this one particular paper that I am showing you on my screen is basically a paper article that explains about different methodologies that is carried out by different universities, and they have compiled everything together to understand the ideal way of calculating a transformer health index. So this gives a starting good guideline for us to follow, saying what is the benefit of one method as compared to the other method. Now this particular paper is written by a school of new energy based in China and in collaboration with other universities based in Australia, and they are talking about methodologies that is used under SIGRE. Now SIGRE, as you may know, is an international symposium which talks about technical advancements that is held in Paris every year, and they discuss about different working groups inside SIGRE in understanding different technological terms. So this paper goes behind the guidelines of SIGRE and IEEE standards, and in terms of the citation, they have also given a lot of citations in this paper, and the conditions mentioned here in terms of copyright is whatever explained in this paper can be used by anyone and can be implemented by anyone. So in this paper, what we have gone through is there are different methodologies, like there are different indicators that have to be understood in order to calculate the transformer health index. Now most of the methodologies are understanding these individual components for a transformer. The most important one we all know is dissolved gas analysis, right? So when the transformer's inspection is done, they do a dissolved gas analysis to identify what is the chemical composition of different gases. And there's a lot of weightage given to these parameters. Likewise, there is oil condition, there is insulation checking, bushing conditions. These are all indicators in order to identify the health of the transformer. Now this table explains about which
utilities and which universities are using this methodology. Kinetrix is a very famous company which does transformer. Yes. Okay. Yes. Let us just discuss point by point now. There are certain transformer in transformer. Basically, if we talk of parameters, there are MNP testing parameters, dissolved gas analysis, and maintenance related parameters, which we divide it into broad categories. Right. Now we see not only dissolved gas analysis, there are some additional parameters also, like ppm, breakdown voltage of oil, specific resistivity, tan delta of oil. There are some parameters, additional parameters, which are like they're not included in dissolved gas analysis. Right. Dissolved gas analysis takes on the gas formation in the transformer. Yes. Gas formation in the transformer. Based on that, one can decide. Now, what I'm more interested is, you must have gone through this paper. So when I say if we consider only dissolved gas analysis in case of we need to calculate equipment health index, and we only consider dissolved gas analysis as a basic parameter for calculation of the health index. Now what I want is there are certain things in dissolved gas analysis: ethane, ethylene, acetylene, methane, carbon dioxide, carbon monoxide. These parameters are captured in dissolved gas analysis test. Now what I'm more interested is how, using these 6 or 7 parameters, gas formations in transformer oil, how we are calculating the equipment health index. Right, perfect. So that's wonderful, sir. So this is the MNP data that you were discussing about. So it is not just dissolved gas analysis. I was just giving an example, but there are many parameters. No. Just basically क्या है, easy to like extrapolate the things into multiple parameters. Now what I'm interested is the dissolved gas analysis parameters I'm considering for calculating the equipment health index. For example, I'm talking of just only one kind of parameter, that is dissolved gas analysis. Okay. It has 6 or 7 sub-parameters. Right. Now, how using these 6 to 7, I'm talking of this article, how using these 6 to 7 parameters I'm calculating the equipment health index. I just throw a light on this. How this paper explains the equipment health index will be calculated. So there is another paper which gives guidelines on what the allowed and not allowed values are. And basically what we're trying to do here is, with all the available data, including dissolved gas analysis, with all the available data, we are trying to score them based on the weightage that is given to each individual parameters. So when we try to score them based on the individual parameters, we are able to identify the health of the transformer. So there is a lot of methodology that goes behind this. I will just show you one more paper which talks about exactly what you were asking for. Now this is what you were mentioning, so the comparison of gas limit recommendation based on IEC and IEEE standards. Now what is the reading that is? Yeah. Let's say, for example, मैं कहता हूँ कि जितने भी मेरे ये इथेन है, इथाइलिन है, say for example इनकी सबकी रेंज 100 के बीच में है, 0 to 100, 0 to 100 सभी. For example, I'm just giving you example. Right. Yeah. So I'm more interested in knowing the weightage criteria which has been assigned. I'm not talking of the limits. I know the limits here. Parameters and limits defined होती है depending upon the voltage level जहाँ पे वो transformer use होता है and temperature, इनकी limits defined होती हैं, वो standard criteria है. Now the thing is कि weightage क्या assign की गई है इन parameters को उसके अंदर. ये रहा सर, ये टेबल में ये जो आर्टिकल जो है ना, वो कैनेट्रिक्स कंपनी का आर्टिकल है. तो इसमें वो लोग डिटेल से बताते हैं कि इसमें ईच इंडिविजुअल पैरामीटर का क्या वेटेज देना चाहिए. सो व्हाट इज द स्कोर दैट इज सपोज्ड, what is the score that is supposed to be given for each individual parameters that is recorded. Because इसमें combination of parameter भी देखने पड़ेंगे ना अपने को. हाँ, correct. So that is how we calculate it. That is how we calculate it. We use a combination of this score and the weight that is given for each individual gases, and then we arrive at what is the dissolved gas analysis factor. And if the dissolved gas analysis, we have done something to when you say कि we have done
something means कि using these data you have drive some scores, equipment health index or something, or you have to still work on it. No, at the moment we haven't gone to that extent yet, but as of now we are trying to understand what are the different factors that goes into the health index. So since we are focusing on the dissolved gas analysis, this is the reference table for scoring and weighting the individual gases. And Okay, based, done हो गया हाँ, डन हो गया। दैट मीन्स कि इनके बेस पे हम कुछ ना कुछ पैरामीटर असाइन कर पाएंगे इनको, correct, पैरामीटर्स को, मतलब हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा कि प्रॉबेबली ये वेटेज होना चाहिए, ठीक है। correct, तो अब क्या है कि अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर के, एक तो ऑयल टेस्ट पैरामीटर्स है, हाँ, एक उसके मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन के पैरामीटर्स हैं, हाँ, हाँ, जैसे ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, आईआर वैल्यू है, उसमें पोलराइजेशन इंडेक्स भी आ जाता है। correct, ये सारे जो ओवरफ्लक्स फ्लक्सिंग का भी होता है, वो सारे जो पैरामीटर्स है वो हमने मॉनिटर किए, ठीक है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, इसमें ये मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो तो मिनिमम और मैक्स लिमिट के बेस पे आप डिफाइन कर सकते हैं। correct, देयर आर सर्टेन पैरामीटर जो रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करते हैं। कि मेरा मान लीजिए कि मैंने कहा tan डेल्टा की वैल्यू है बुशिंग की, फॉर एग्जांपल वो कहता हूँ मैं 0.7 है फॉर एग्जांपल, okay, और वो पिछले एक साल में 0.7, 0.71, 0.72 ऐसे चलती रही एंड सडनली वो 1 हो जाती है। दैट मीन्स कि देयर इज सडन रेट ऑफ चेंज, जो जिस रेट से वो चेंज हो रही है वो भी मेरे को इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा जब हम tan डेल्टा की बात करें, yes, yes, yes. ठीक है। So तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी नीड टू डिस्कस फॉर ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट हेल्थ, फॉर स्पेसिफिकली एनी इक्विपमेंट हेल्थ इंडेक्स, we need to discuss these parameters in detail, and accordingly we need to assign the weightage for each parameter. correct, sir, correct, sir. So for example, we just went through dissolved gas. Similarly, we have to come up with a scoring methodology and a weightage factor for the other parameters, including the tan values and bushing values and insulation values, Megger values. These are all values that needs to go through the same formula. So basically, it So is. what will be, See, I what will show will be you. the final output then? The final output is going to be a health index which is going to show in percentages, which is going to say if the health index is above 85 to 100%, then the transformer is very good, and and the expected lifetime is above 15 years. If the value is very less, then it means that is the end of the lifetime of the transformer. डिफरेंट कुछ परसेंटेज शेयरिंग दिखा रहा हूँ। मेरे स्क्रीन आपको दिख रहा है ना सर, ये जो हाँ दिख रहा हाँ, है, it is visible, it is visible। हाँ, ये क्या दिखा, थोड़ा बड़ा करना है इसको। yeah. If equipment health index is 85 to 100%, very good. The aging or minor deteriorations of a limited number of components. बनेगा तो कुछ ऐसा ही, बनेगा तो कुछ ऐसा ही। तो इसके अंदर मैं आपकी डेलीगेशन कराऊंगा अपने टीम वाले लोगों से, आपको बिठाना पड़ेगा मुझे कमेटी मेंबर्स को, ये और टेक्निकल ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मैं आपको, पर ठीक है पोस्ट तो ऐसी होगी। तो इसका एक तो जो आपने ये सर्च किया इसको मेरे को भेज देना, ठीक है, ठीक है सर। तो एक पहले वाला पेपर दिखाया था और ये वाला दिखाया है, दोनों मुझे भेज देना और हम भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, इस पर काम कर लेते हैं। PSA वाला मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये ले लो वैसे, इसको पढ़ लो, इसको स्टडी कर लो, एक सेटिंग और दे लेते हैं। बट इसके लिए जो PSA के लिए और इक्विपमेंट हेल्थ इंडेक्स के लिए मुझे अपनी कमेटी को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तब तक हम स्टडी करके सेकंड सेटिंग थोड़ा टेक्निकल जाता है, वो अपनी इनपुट देंगे इसमें कि ये कैसे आएगा, ये कैसे है। और बार बार कहूँगा कि हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सर, सही है सर। हाँ, क्योंकि पता क्या है कि हम चाहिए तो हमें बहुत कुछ होता है, बट हम कैप्चर कैसे कर रहे हैं उसको, वो इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा डाटा एनजी के थ्रू आ रहा है, स्काडा के थ्रू आ रहा है, या फिक्स्ड डाटा है, या नहीं आ रहा तो हमें डालना पड़ेगा, वो मैपिंग भी साथ साथ जरूरी है, नहीं आ रहा तो हमें डालना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ को हम स्किप कर रहे हैं तो वो उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं कहता हूँ जब डेमो वाइल की डिस्कशन हो ना तो रतन को बिठाया करो, अब ठीक है, क्योंकि फिर वो समझ लेगा कि
इसको इनको एनालिटिक्स को भी, जैसे इसके पास मोटे एनालिटिक्स है, उनको और देखिए कि मेरा ये चीज़ तो कैप्चर हुआ नहीं थी यहाँ, और उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन चीज़ों को। जैसे शकील को अंडरस्टैंडिंग है, ये बात कर रहा है, इनको समझ आ रहा है थोड़ा, तो आप जब हमारे पास बैठे ना, तो आपके पास वो फील होना चाहिए कि अच्छा ही मेरा ये एनालिटिक्स में ये चीज़ तो आएगी नहीं थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका रोल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिटिक्स वाले कंसल्टेंट में। क्यों होता है? क्योंकि हम तो अपनी मोबाइल की अपनी प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते चलेंगे, जब फाइनली एनालिटिक्स देखने के बाद अरे यार ये तो कैप्चर ही नहीं किया, तो वो अभी आप बता दोगे तो अभी हम लेकर फिर कैप्चर भी कर लेंगे, तो नहीं हमारे भी दिमाग में नहीं आएगा, बट एज अ टीम उसके बाद ही रह जाएंगे, फिर कैप्चर करेंगे। बट क्या है कि एज अ टीम हम सारे निकल जाएंगे। तो एनालिटिक्स की लिस्ट आपके पास है, आप देखो कि आपका जो TSA है, TSA मान लिया हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखो कि ये प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें TSA पॉइंट ऑफ व्यू की इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं होगी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ रोल, क्योंकि फिर क्या होगा जब फाइनल एनालिटिक्स बनाना शुरू करेंगे ना, फिर आपको क्योंकि हम डिस्कशन इस पे भी कर रहे होंगे पैरेलली, मतलब ला रहे होंगे फील्ड से, तो जब फिर हमको क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है, मोबाइल में जो भी डिस्कशन होता है वही TSA का बंदा मैंने दे दिया। ठीक है, ठीक है, और ये वाला मुझे शेयर कर देना। ठीक है, ये मैं अपनी टीम से भी शेयर कर देता हूँ। और ये एक स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ सर। और क्या आप ये कर लो, मैं इस पे ओके सेकंड। ठीक है सर। दो ही point। ये दो ही हमने point, और दो ही इसमें भी classes। हाँ, इसमें भी थोड़ा काम किया था, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो दिस इज ऑल द पैरामीटर्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड दैट इज इम्पोर्टेंट टू डू द हेल्थ इंडेक्स and where these sources are coming from. As of now, we have identified that oil leakage and these data is available in the logbook. Some of the data is available in the SCADA and logbook, and some is supposed to be available in the MDA. So these kind of sources we have already gone through and identified where the data can be captured in order to calculate the health index. एक्चुअली क्या है ना, जो ऑपरेशनल डाटा है ना, ऑपरेशनल डाटा जब हम कैप्चर करेंगे लॉग शीट से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग का टेम्परेचर इंडिकेटर्स हैं, उनका डाटा ज़्यादा यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए हेल्थ इंडेक्स के लिए। Yes. बाकी जो पैरामीटर्स हैं ऑपरेशन में, बाकी जो पैरामीटर्स हैं सारे टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, EGA, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ऑयल, एम्पिरिकल पैरामीटर्स, IR वैल्यू, ये सब मेंटेनेंस के पार्ट है, Correct. रेगुलर का नहीं है। ये ऑपरेशनल पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है ना, Correct. ये operational parameter ओवरलोड है, ये sir, पैरामीटर हो सकता है कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है। correct. वो वाइंडिंग टेम्परेचर का रीडिंग कैसे आ रहा है सर? आप डू यू हैव सेंसर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द ट्रांसफार्मर? अभी सेंसर नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, जो ये हम अपना मोबाइल वेब सॉल्यूशन बनाएंगे ना, इसके अंदर टेम्परेचर इंडिकेटर को हम ऑपरेशनल पैरामीटर लेंगे। ओके। SP is there? Yes, please sir. इसमें 7 पैरामीटर, स्कैडम को 7 पैरामीटर है ना, एक्टिव, रिएक्टिव, हाँ, ट्रांसफार्मर टैप पोजीशन, एक्टिव, रिएक्टिव, टेम्परेचर, बाइंडिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा, राइट? नहीं, वो SCADA में नहीं आएगा, बट वाइंडिंग टेम्परेचर इज नॉट अवेलेबल इन SCADA. हाँ, वही बात मैं कर रहा हूँ इसमें। Is it available SP? I haven't seen it. No, it is not available. एनालॉग में नहीं टैप कर। Yeah, we went through the yearly latest dump also. There also it is not available. ठीक है, मैं कुछ मैं भेज रहा हूँ, मुझे आपको मैंने दे दिया। ठीक है, एक डिस्कशन और कर लेंगे, ठीक है, बट आप इससे डिस्कशन करते रहो कंटिन्यूसली, मैं खुद जाऊँगा। चाहे 1-to-1 करते हो, टीम की जरूरत नहीं है। नहीं, बेस की बना के इसके बाद अगला स्टेप कौन सा जाएगा, उसके बाद कोई What डेटा to do मतलब करके आप कोई रिसर्च करके उठाएंगे, पर यार गूगल सर्च पे जो सारे दूसरे डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करके हैं। शकील, हाँ सर। हाँ, ये रिकमेंडेड है कि डॉक्यूमेंट जो आप ये कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस के तौर पे उठा रहे हो सर, वेदर इट इज TSA और ट्रांसफार्मर हेल्थ इंडेक्स, और जर्नल गूगल सर्च पे जो आपको डाटा मिला वो आपने कंपाइल कर दिया है। हाँ। और सेकंड वाला बात है ट्रांसफार्मर हेल्थ इंडेक्स, हाँ, ये पूरा हमने रिसर्च नहीं। हाँ,
उनका क्वेश्चन ये है कि गूगल से आप ले लिए हैं या कोई स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर से हैं जो नहीं, ये पूरा appropriate गूगल है से इनको? नहीं, गूगल से नहीं मिलता है सर. These are all standard research papers which is available. Certain papers are available in Google, certain papers are not. Like for example, the Sigray method. Sigray is a very proprietary methodology. में भी आ ही जाएगा, मतलब वैलिडेटेड. कुछ हमें तो एक ही दिखाया और वो ही है रहा, और ये जो ये जो मेन पेपर है वो गूगल में अवेलेबल है. ये है ना, गूगल में भी डाल देता है, ये भी दे, लेकिन दिस इज वैलिडेटेड. अखिल, Yes, it is. See, this is the main paper इसका that we have. वैलिडेशन कहाँ से उठाया, उसका कोई रिकॉर्ड मिलेगा हमको? वैलिडेशन तो ये हो सकता है, कहने का मतलब क्या है वो गलत ना जाए तरीका. एक तो चीज है कि भाई ये नॉर्म्स या ये कैलकुलेशन के मेथड ना मे बी पावर ग्रिड यूज कर रहा है या कोई अदर स्टेट या See, this, गवर्नमेंट ट्रांसमिशन एजेंसी या कोई प्राइवेट ट्रांसमिशन एजेंसी या डानी खिडानी कोई यूज कर रहे हैं, ये अडॉप्टेड मेथड्स हैं. हाँ, ये इधर पूरा दिस वन adopted- और गूगल सबसे लोगों ने अपनी अपनी फीसिस डाल रखी है ना. वो तो मैं अपनी डाल कोई जरूरी सकता हूँ, आप नहीं है. अपनी डाल सकते हो, ये अपने डाल सकता हूँ कोई मैं. जरूरी नहीं ऑथेंटिक हो गए, हाँ, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं. हाँ. तो ये पॉइंट है. नहीं, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ. ये जो पेपर जो हम रेफर कर रहे हैं ना, जो मेथोडोलॉजी हम यूज करने रेफर कर रहे हैं, this is available from this particular department, which is shown where and all they have also utilized it. This method is not just used in universities. This is the website from where we have taken the data, and they have also given information saying you can utilize it. There is no problem in utilizing it. So मैं आपको ये और एक लिंक था. एक्चुअली इतनी बात होती है शकील, एक्चुअली क्या है, कुछ तो होती है कि प्रूवन चीजें हैं कि इनको कहीं यूज किया गया है. हाँ, वो कुछ data होता है कि भी- मैं हाँ. अभी रिसर्च मोड में हूँ और मैंने कहीं से सर्च करके उस पर काम कर दिया. हाँ, वही तो ये टेबल मैंने आपसे दिखाया था ना क्योंकि सर. ये बताऊँ, this थीसिस में मैंने 2 पेपर छाप रखे हैं मेरे अपने पेपर. मैंने छाप रखा. मैंने उसमें कोई रिसर्च नहीं कर रखी, मैंने तो डाटा डाल के अपना एक सिमुलेशन सा डब्बी से सिमुलेशन करके मैंने चला के दिखा दिया. तो वो कोई ना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होते. सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी हम प्रपोज करने जा रहे हैं, चाहे मैं नहीं कह रहा हम सारे पैरामीटर लिए ट्रांसफॉर्मर के, हम कह रहे हैं कि हमने 6 पैरामीटर लिए ट्रांसफॉर्मर के, जिसके बेस पे क्रिटिकल जो है उसके बेस पे ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स किया, बट वो कहीं ना कहीं किसी ने कहीं यूज किया हुआ है, नहीं किया हुआ उसके बेस पे, या फिर hमें पता लगे हम तो जंगल में अकेले शेर हैं, हम नहीं करना है. नहीं, ऐसा नहीं है कि these are parameters that is very generally used, and this is being discussed in Sigray and IEEE meetings, and these are the companies that are currently using it. Kinetrix is the transformer health index identifying company. Hydro-Quebec is a utility which is hydro power plant in Quebec, which is state of Canada. US and Thai utilities, these are utilities located in the United States, and this is one more university which is using the methodologies. So these are parameters that is frequently used by other industries, and they are validated by other सर यहाँ पे industries. ये ऐसा हो, मैं एक और चीज बोलता हूँ. हमारे पास सर डाटा बैंक है अपनी इस एप्लीकेशन में, है ना. मोबाइल वेब एप्लीकेशन से भी आ रहा है डाटा, SLDC से भी आ रहा है, और अदर लेगेसी एप्लीकेशन से भी डाटा आ रहा है. तो इधर तो आप मेरे को ये प्रोविजन दे दो कि हाँ भाई ये डाटा के बेस पे एक मेट्रोलॉजी डिवाइस इनिशियली कर दी, जिससे सिस्टम जनरेटेड TSA निकल के आ रहा है या सिस्टम जनरेटेड हेल्थ निकल के आ रही है. से TSA की बात करते हैं अभी. अलोंग विद दैट जो TSA कैलकुलेट हो रहा है, जो HERC में भेज रहा हूं मैं आज की डेट में, वो TSA की वैल्यू भी मैं एक्सटर्नली एंटर कर रहा हूं. हाँ, एप्लीकेशन के अंदर. इसके बाद सर अगर इफ देयर आर गैप्स बिटवीन द वैल्यूज आई हैव एंटर्ड और सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है, तो आप में AI का यूज करके आप एडिशनल पैरामीटर्स को गैस कर सकते हैं. हाँ, तो that सोचना पड़ेगा. That we need to do a lot of work. क्योंकि सिर्फ इतना नहीं होना कि मैंने एक फॉर्मूला डाल दिया है और हमेशा के लिए जो HERC को मैं डाटा भेज रहा हूँ वो अलग निकल के आ रहा है, जो सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा है वो अलग निकल के आ रहा है. तो अगर वो अलग निकल रहा है तो सिस्टम में कोई ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी AI ML टेक्निक का यूज करके होना चाहिए ना, कि हाँ वो अपने रिजल्ट्स को करेक्ट कर सके. कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं. बट हाँ, हम सिस्टम जो कैलकुलेशन हो रहा है उससे मैच करना हमारा, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर सपोज टू प्रोवाइड एनालिटिक्स दैट मैचेस विद द सिस्टम्स वैल्यूज.
सर कोई ना कोई रिकर्सिव करेक्शन मेथड तो अपनाना पड़ेगा इसमें अपने को इनिशियली। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। जब तक मैं अपने एक्चुअल रिजल्ट के नजदीक नहीं आ जाता। अगर तो प्रूवन चीज है तो पावर चाहिए तो अगर प्रूवन नहीं है तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमें मेथड डिवाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें तो पता ही, अगर पता तो हम आगे में कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप कर रहे हैं वो इनपुट भी हमको अगर मिल जाता है तो वो ये तो वन टेक्निकल रिपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। हम डाटा दे रहे हैं तो फिर किसी दे रहे हैं तो हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। टेस्ट रिजल्ट के बाद हमें लगा भी ट्रांसफार्मर टेस्ट में निकल जाए, हम तो ट्रांसफार्मर के अंदर बंदा उतार देते हैं, वो चेक कर ले कोर में कोई दिक्कत है तो बता दे, राटा कोर में दिक्कत है तो रिपेयर करा देते हैं। अब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर घुसने से पहले मुझे पता चल जाए घुसना पड़ सकता है, उनके पैरामीटर्स के जैसे मुझे डिसीजन लेना पहले, आगे मैं नहीं दे रहा कि मैं कैपिटल लॉजिक करा लूँ, उसी के लिए तो मैंने डाटा एनालिटिक्स का था। तरीका यही हो सकता है कि पास डाटा चाहे पास रिकॉर्ड्स कुछ आपका हो, पास डेटा अभी कुछ क्रिएट होगा तो नहीं हम उसी पढ़ रहे हैं। आपके पास तो रिकॉर्ड से किसको आपने इंडेक्स में नेगेटिव पॉइंट दिया चाहे व्हाटएवर दिया, और हम इस फॉर्मूला से उसको उस डाटा को हम पर मिले हमारे पास मैं मैं बताता हूँ, हमारे पास अगर मिलेगा भी ना तो ही मिलेगा कि ट्रांसफार्मर चल रहा था कि डैमेज हो गया, चल रहा था तो डैमेज और उसे पैरामीटर दे देंगे आपको, टेस्टिंग पैरामीटर क्या है, और ये देखो मुझे में क्या है एप्लीकेशन में क्या थे पहले भी क्या था, वो दे देंगे। क्या डाउट हुआ आपको इसी दे सकते हैं। डाउट तो डाटा के बेस पे हो, डाउट तो हुआ ही नहीं। नहीं आप अंदर देख रहे हैं नहीं वैसे तो मैं तो बात ही करना मेरा इसमें ना एक सजेशन है कि इंस्टेंट डोपामाइन हेल्थ इंडेक्स निकाल के दे उसका, है ना, हम डाटा कि परसेंटेज बताएं, ये बताएं, आप उसको ये बताओ कि ये चीज़ें डेटोरेट हो रही है और उसको कलर कोडिंग के हेल्प से दिखा दो सिंपली कि भाई रेड जोन में है ये, ऑरेंज जोन में है, येलो जोन में है कि ग्रीन जोन में, वो तो आसान है और फिजिबल भी है ये चीज़। तो ओवरऑल बताया ना कि ओवरऑल ये इतना वो तो बताया नहीं ओवरऑल किस बेस पे करोगे आप? ओवरऑल अलग-अलग पैरामीटर क्या है, अलग-अलग पैरामीटर ओवरऑल से बढ़िया सोल्यूशन ये है कि आप बताओ कि रेड जोन में है, रेड क्लिक करूंगा और रीजन बताएगा कि ध्यान और ये बिगड़ा सब ये बिगड़ा हुआ है। नहीं ओवरऑल इसमें तो ओवरऑल बहुत है, उसके साथ भी क्यों आया उसके साथ साथ वो भी निकाल कर देंगे भाई ये कंपोनेंट जो है ये आया। नहीं ये नहीं कह रहा, हाँ ये कह रहे हैं हम कि हमने पैरामीटर सारे लिस्ट कर दिए पैरामीटर ठीक है, क्या आपके ये पैरामीटर है जो रेड जोन में है वो अलग हाइलाइट कर दिया, आपके 3 पैरामीटर रेड जोन में, ठीक है। अब आप डिसीजन ले लो इसके बेस पे क्या लेगा। तो फिर जो भी एक जो भी इक्विपमेंट है स्टैंडर्ड क्या है कितने लिमिटेशन जो ओवर एंड अबव लिमिट है वो किसी को वन इज ओवर एंड अबव लिमिट और एक रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज है जो वो उसको उसके बता दिया रेड जोन में, ये रेड जोन में और ये ग्रीन और एम्बर जोन में जाने वाले हैं रेड जोन में ये पैरामीटर्स, उसके बेस पर डिसीजन जिन ट्रांसफार्मर के सारे पैरामीटर ठीक चल रहे हैं, ठीक है, वो ग्रीन दिख रहा है, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट वो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर ग्रीन दिख रहा है जिसके सभी पैरामीटर विद इन द लिमिट है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। अब जिसकी डेटोरिएट हो रहे हैं उसमें प्रायोरिटी पे जरूर हम खेल सकते हैं कि हाँ यार कि जो 10 डेल्टा है इसकी प्रायोरिटी इतनी है, 2 या 3 प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं इसमें डेप्थ पकड़ना है, अपने को 3 कलर में खेलना है, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, है ना। रेड में उसको दिखा देंगे, वो हम कर लेंगे डिस्कशन कि रेड में किस चीज़ को लेके जाना है, कितने परसेंटेज तक वालों को रेड करता है परसेंटेज तो कैलकुलेट होगा ही नहीं तो जी ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स निकल के आएगा तो भाई ओवरऑल के हिसाब से वही ओवरऑल इंडेक्स निकालोगे ना, अब तो उस इंडेक्स में विटेज डिफाइन करना तो इंडिविजुअल जो है, क्राइटेरिया बड़ा सा बेग है, वहाँ तक नहीं जाने की जरूरत है, इस हिसाब से नहीं जाना चाहिए। If हमारे पास कोई एक स्ट्रेंथन तरीका ना हो, स्ट्रिक्ट तरीका ना हो कि ऐसे ही होता है तो प्रूवन हो गई। हाँ
कि इंडस्ट्री में ये चलता है, मैं कंफ्यूजन आप करेंगे। अदरवाइज आप यूजर से दिखाओ कि ये सखी- कमियां हैं, Yes, तो sir. आप ये दिखाओ ये टेक्नोलॉजी आप वही कमियां के बेसिस पे वो है तो अपना हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हम सर्च कर सकते हैं जिससे कि भाई हम ये हेल्थ इंडेक्स लेकर के कोई यूटिलिटी इसको यूज कर रही है जिससे कि इनको आसानी हो जाए। सिस्टम जनरेटेड अभी ये डाटा की रिपोर्ट दूसरा यूटिलिटी जो यूज कर रहे हैं वो तो हमें नहीं मालूम है सर। सेक्शन की आईडी कोई मतलब इंडियन यूटिलिटी ऑफ ये पैरामीटर डाटा क्रिएट होते हैं। चलिए वो तो चाहे वो सिस्टम ना भी खोल के देखे, मंथली सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट चले यानी के बाद और अब पी इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट ये रेड जोन में आ रहे हैं, ये ग्रीन जोन में है, ये सब चीजें। तो वो जो रेड जोन का कंपनी हम ओवरऑल बता रहे हैं अब हाँ, कब तक इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए? जब तक कि कोई प्रूवन मेथड हमारे हाथ में लाओ, जब हमारे पास हो गया तब तक फिर हम स्कोरिंग करेंगे, फिर हम कह देंगे फिर कि कर ले। ये नॉर्मली इस पर सर्च होगी ना, डेटाबेस के में सर्च हो गई। अभी सर्च ही नहीं है मेरे पास कोई, तब तक डाटा भी हाथ में होगा मेरे। किसी Correct और इंडस्ट्री data। ने किया हो, जैसे 3-4 इंडस्ट्री के नाम ले रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज में, कनाडा वगैरह का नाम ले लें, तो कनाडा में सावंत है, उससे पूछता हूँ, उनको नाम देना है इसका, कौन सी कंपनी कह रहे हैं, ठीक है होंगे पता कर लेगा कहीं ना कहीं से कैसा कुछ कर रहे हैं क्या। अगर ऐसा है उनके पास की फुल प्रूफ मेथड है, फिर हमारे पास भी एक वे बन जाता है कि नहीं वहाँ चल रहा है इसलिए हम ये यूज करें। से कहने में ऐसा नीले वाला वहाँ चल रहा है उसको हम एकदम यहाँ अब एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बंदा, मैं कहता हूँ एसिड रेन को वेटेज ना डिजॉल्व गैस नाले 50% रखते हैं, मैं कहता हूँ 20, क्या कह लीजिए आप, इसका बेस है उसका कोई इम्पैक्ट इतना नहीं आता है, तो वही ना, वही इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो बाइंडिंग टेम्परेचर इतना करता है उससे। या फिर इसका कोई वेट मेरा प्रूवन साइंटिफिक रिजल्ट ये अदरवाइज तो आप ये बताओ कि ये डाटा रेशन है, ये पैरामीटर इतने परसेंट से इतने साल में इतने महीने में ये डाटा क्रिएट हो गए, उसके ग्राफ बना के दिखा दो कि यहाँ से सीधा यहाँ गिर गया, ये यहाँ पे वहाँ गिर गया, ये दिखाओ आप हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी कंपैरिजन करके दिखा दो कि ये इसके तो ये चल रही है। एनालिसिस के बेस पे हम सिर्फ एक एनालिसिस दे सकते हैं, एनालिसिस देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये एनालिटिक्स नहीं। हमने ये कहा कि मेरा ग्रीन है सारा, तो आप ये दिखाओगे ये ट्रांसफार्मर ग्रीन जोन में है, हाँ वो तो ये अब किसी पैरामीटर के मैं कहता हूँ कि तो टोटल पैरामीटर जो ट्रांसफार्मर के थे 100 थे फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं उसके 30 पैरामीटर्स खराब हो गए, अब उसका एम्बर में दिखा अभी मोटा मोटा ठीक है। अब हमने कहा कि 50 से ऊपर डैमेज हो गई पैरामीटर, 50 से ऊपर बियॉन्ड लिमिट या खराब हो गए, तो मैंने कह दिया तो इंडिविजुअल वेटेज की जानने की जरूरत ही जरूरत ही नहीं है नहीं, इसमें। मैं इस सिंपल नहीं ले जानने की फिर सिंपल नो विदिन लिमिट में, तो मैं इस तरह से एक और जैसे एक ऐसे कोई मैंने क्रिटिकल पैरामीटर में ढूंढता हूँ कि ये तो इतना क्रिटिकल, अगर ये इसकी हो गया ना आगे तो खत्म है कहानी। देखो सर, कोई पैरामीटर की रेंज है, और कमेटी से और आईडी ले लेंगे। वो तो नहीं, इसके अलावा भी समझो सर, कोई रेंज है, मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 100 तक की वैल्यू है इसकी, ये है गुड हेल्थ, ठीक है। अब वो मेरे को पता है 150 पे मर जाता है, लेकिन मेरे को पता है कि 150 से जाने पे एक लेवल 130 का भी है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो बिल्कुल हवा में तीर मार रहा हवा हूँ। में तो वैसे नहीं, वहाँ भी 1 से 100 है, हाँ और अगर मेरा वो 100 को अप्रोच कर रहा है, हाँ, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज है जो कि 100 को अप्रोच कर रहा है, नहीं सर मेरे पास ये डाटा तो है ही ना, या होना चाहिए कि जब भी मेरा ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उस पर MNP टेस्टिंग होती है, MNP टेस्टिंग में सभी पैरामीटर की वैल्यू आती है। वो भी सारों के रिजल्ट लेने पड़ेंगे, ये बनाते कोई नहीं है ऐसा, मतलब हमें सारों के डैमेज के सारे नहीं तो डैमेज रिपोर्ट जो बनाते हैं ये उसमें ये क्या मैं बताते हैं? उसको पता है क्या, उसमें से एनालिसिस करके निकालने पड़ेंगे अपने को, देखिए कोई किसी कारणवश डैमेज हो रहा है, किसी कारण नहीं मैं तो ये लिखते नहीं रिपोर्ट में कि ये रीजन है। रीजन ये लिखते हो, कहते हैं 11 kV की रीजन क्या लिखते हैं, 11 kV की ट्रिपिंग की वजह से डैमेज हो गया, बस सीवीएलवी की कॉइल डैमेज होगी या कुछ और होगी, लेकिन रिजल्ट्स वो तो आते ही समझ गया, फिर ये काम नहीं आएगा, तो रिजल्ट या तो फिर ये बन जाएगा ग्रेजुअली हाँ। आज नहीं बनेगा। तो पहले मैं जिस तरह परसेंटेज वेटिंग वाला बनाया था तो उसको अजय सर ने कहा कि इतना लिमिटेशन फिर मेरे को हिंदुस्तान में फिर नहीं ये रखते, करना पड़ेगा तो उसके लिए तो उन्होंने कहा विद इन द लिमिट आउट ऑफ द लिमिट, विद इन द लिमिट है। नहीं उसमें 2-3 चीजें, ऐसा नहीं है यार, कल मैंने डिफाइन किया 0 से 100 रेंज है, मैंने ट्रांसफार्मर के रिजल्ट रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। मैंने एक पैरामीटर ये भी लेना, रेट ऑफ चेंज किया उसका, ठीक है मान लीजिए 50 से 60 हो रहा है, 60 से 70 हो रहा है, अभी हर एक साल ये बढ़ ही रहा है, ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना, ठीक है उस चक्कर में वो एम्बर हो जाएगा।
चाहे वो विद इन लिमिट है, पर अप्रोच नहीं, करता वो- हूं को। वो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो एक तो विद इन लिमिट तो है। होगा ना सर, ये पीयर कंपैरिजन से क्या होगा कि जितने भी ट्रांसफार्मर है उसका ये पैरामीटर सिर्फ 5% चेंज होता है, लेकिन इसका 20% क्यों चेंज हो गया? यार वो ऐसा है इसका तरीका, हाँ एक और हाँ। है, आप सारे पैरामीटर्स का या सारे पीयर कंपैरिजन करो। सेम रेशियो का, वोल्टेज रेशियो का, हमने ये देखा कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना परसेंट है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर का उस एवरेज रेट ऑफ चेंज से ज्यादा है। नहीं, कुछ ज्यादा बोल रहा है, बाकी ये नहीं बोल रहा है, कुछ जरूर बात। ठीक है। तो ये मेथड ये भी हो इसका बेस्ट तरीका यही है। पर उसमें आपको ये है लिमिट लिमिट तो डिफाइन कर ही दिया आपने, नॉन लिमिट का तो ठीक है, बाकी अगर विद इन रेंज Rate किया of- तो पेयर से कंपैरिजन हो ही रहा है। ये तो एक तरह से विद इन द लिमिट कर लो, इसमें ये कहूँ विद इन रेट चेंज क्या है, तो रेट चेंज भी हमारा 10% से अब देखो जब आ गए ना 3 कलर तो पूछ गए, ग्रीन क्या है सब कुछ ठीक, रेड क्या है खराब हो गया, कुछ डेटोरेट हो गया रेड, और बीच का क्या है तो विद इन द लिमिट, लेकिन पीयर कंपैरिजन में स्टैंड नहीं कर रहा। अब एक मिनट आपकी बात दोबारा बोलो। किसी के इंडिविजुअल कंपोनेंट का आपने देख लिया कि भाई ये इतना ये सब चीज़ें विद इन द लिमिट है, उसके बाद यदि कोई रेट ऑफ चेंज जो है यदि आउट ऑफ द लिमिट है उसके हिसाब से जो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो रेट चेंज हो तो वो रेड हो जाएंगे। हमने ये बोला जी, नहीं देखिए, जो बिल्कुल सही चल रहा है वो ग्रीन है, नहीं तो दो कंपोनेंट होंगे ना। जो अपने रेंज से बढ़ रहा है, चाहे ये हो रहा है ज्यादा, उसमें कलर ऑरेंज आ गया, और जो पियर्स वाले से रेंज बढ़ रहा है उसमें एकदम से आप भी दोनों नहीं समझे। तो क्या आप बताएं। 3 ही बंदे हैं, एक तो है कि जो लिमिट से बाहर ही चला गया वो तो रेड हो ही गया, तो वन कंपोनेंट हो गया, सब कुछ ओके है, वो ग्रीन हो गया, और सब कुछ ओके की परिभाषा है। वन इज की वो विद इन द रेंज है, अपने जो पुराने रिजल्ट है उसकी रेंज में चल रहा है। नंबर एक, सेकंड पीयर ग्रुप को उसने कंपेयर किया कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 से 12 होगी मेरी वैल्यू किसी चीज़ की, चेंज हो गया। पीयर ग्रुप में जो वैल्यू हुई उसके बिल्कुल पीयर ग्रुप में जो रेट ऑफ चेंज हुआ ना वो 10 से 12 का परसेंट निकल गया। कितना परसेंट आया? उसने देखा जो बाकी वाले है ना, बाकी और ट्रांसफर बाकी तो आधा परसेंट, उनमें तो 11 हुए हैं, ये 12 कैसे हो गया? परसेंटेज में उसी में कहता अब वो 12 जो हो गया तो उसने 2 चीज चेक की, एक तो उसकी अपनी रेंज चेक की कि उसकी डिटोरेशन किस लेवल की है, प्लस पीयर ग्रुप में क्या वो ऊपर तो नहीं जा रहा है इससे, अच्छा रेट ऑफ चेंज जो है वो ज्यादा तो नहीं है, दैट मींस का रेट ऑफ चेंज जो है ना वो देखने लायक है कुछ, लेकिन एबनॉर्मल है वो, है ना, 2 बैलेंस हो गए, ये हो गया अब तीसरा रेड हो बताइए, ग्रीन बिल्कुल रामला बिल्कुल ओके रिपोर्ट, तो रेड नहीं जो ग्रीन हो गया भाई, सब कुछ सही है, दोनों कंपोनेंट सब कुछ सही है, और पीयर सही है। नीचे है। और तीसरा कौन सा जो रेड का, दोनों में से कोई एक आउट ऑफ द लिमिट चला जाए या पीयर ग्रुप की परसेंटेज से भी ज्यादा है हाँ पहला, हाँ दूसरा और लिमिट से आउट हो गया, लिमिट से हाँ, तो दोनों में 1-1 हो गया है, 0-0 है तो ये तो 1+0 भी है तो गेट डालो ना उस पे, और गेट लगाओ और एंड तक लगेगा ना 1+0 रेड जो हो रहा है और वो कहाँ से, और लगेगा 1+0 1 हो जाएगा। रेड का इनपुट कहाँ से ले रहा है, रेड का इनपुट कहाँ से ले रहा है, लिमिट अगर बियॉन्ड होगी फिर सही है ना, पियर से कोई मतलब नहीं उसको, उससे ये एक अलग बैलेंस नहीं है, कंपोनेंट बाहर चली गई, फिर पीयर का कुछ नहीं करना होता है। वो कहेगा बाहर चली गई, और गेट लगा दो ना 1+0 का मतलब कोई भी 1 हो जाएगा तो वो रेड हो जाएगा। वाले दोस्तों से पियर से अगर दोनों पिटते हैं लेकिन फेफड़े आपके ज्यादा खराब हैं। तो मैं एकदम ऐसा करना मुश्किल हो இது அவங்க லெட்டர்ல तो जिनको बोल रहे हैं எவ்வளவு கேங்க नहीं तो रतन सिंह को दारू पीता है क्या? அதுக்கு ரேஷியோ நம்ம கொடுப்போம் ओके सकीर நாளைக்கு या किरण टीम ठीक है सर, ठीक। समझ गए सकीर नहीं अभी क्लोज मत करिए आप सकीर, हाँ सर, जो डिस्कशन अभी थोड़ा सा जॉयस मूड में हुआ था समझ गया हाँ अभी जैसा कि हम लोग ये था कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट वेटेज वाली बातें थी कि इस हाँ। वेटेज में इतना चलेगा, इससे सब चलेगा, करेक्ट? करेक्ट तो ये उसी इंडिविजुअल जो कंपोनेंट का 2 पार्ट में तोड़ लिए, एक फर्स्ट पार्ट में कि जो विद इन द लिमिट है
राइट। ओके और दूसरा जो है जो उसमें चेंज है तो और दूसरे टेम्परेचर उसका कितना रेट ऑफ चेंज है, ओके राइट। हाँ 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 रेट ऑफ कितना चेंज है। हाँ, यदि इन दोनों कंपोनेंट्स में कोई भी गड़बड़ है हाँ तो रेड जोन में चला जाएगा। अच्छा, राइट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और यदि पहला ये कि विद इन द लिमिट से बाहर जा रहा है सही है सही है सही है। या उसमें, ठीक है। तो हाँ। दो कंपोनेंट जो हमारा जो या तो हम एक अभी इसमें रिसर्च में हम करके लेके आए हाँ कि हम कहीं एक प्रूवन पेपर ले आए कि यूटिलिटी काम कर रही है, ये यूटिलिटी कार्ड हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो हाँ। हमको इस स्टेप पे नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा यदि हमारे पास जब तक हमारे पास लिमिट्स नहीं है तो हमको इस स्टेप पे जाना पड़ेगा, दो कंपोनेंट बना करके, एक विद इन लिमिट और दूसरा सेकेंड ऑफ चेंज कितना है, जो रेट ऑफ चेंज है वो दूसरे के कंपेरिजन में कितना चेंज हो रहा है। टाइप ऑफ इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर है उस गियर्स किसको कह रहे हैं? मतलब कुल मिला के सर मैं ये चाह रहा हूँ, मैं मोटा अपना कंक्लूजन बता देता हूँ कि अगर मैं सिस्टम ड्रिवन कोई परसेंटेज दिखा रहा हूँ ना हेल्थ की, तो वो मैं तब दिखाऊं जब मैं खुद श्योर हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग इसके रिजल्ट के बेस पे डिसीजन लेके एक्शन लेके ये कहें कि देखो जी सिस्टम में ये दिखा रहा था इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो वो रिजल्ट तब तक ना दिखाएं जब तक हम खुद श्योर नहीं हो उस रिजल्ट को लेके। ठीक है, ओके। जवाब नहीं मिला सचिन जी। हाँ मैं समझ गया। You're recommending that we don't go with the weightage पता नहीं factor. लगता कितना सुन रहा है। हाँ नहीं बताएं जब ये लोग जानता है। तो आप सर आप ये बता रहे हैं कि आप just don't depend only on the weightage factor but also go with the rate of change. यस। नहीं सिर्फ सर दोनों- कहीं और पहुंच गए हम। शकील जी हाँ सर तो बात ये नहीं बोला हमने, हाँ देखिए अब बड़े बड़े साहब समझाएंगे। बड़े साहब जैसा बोले हैं अभी आचार्य जी, मैं उसमें रिपीट कर रहा हूँ आचार्य जी करेक्ट। एक है कि नॉर्मल है, विद इन द रेंज है, जो Okay. भी उसकी प्रेस्क्राइब्ड रेंज है उसमें है तो ग्रीन हो गया। एक रेंज से बाहर से जा रहा है तो रेड होगा, और एक जो है कि रेंज से बाहर नहीं जा रहा है हाँ। लेकिन वो इक्विपमेंट का जो पैरामीटर्स है बाकी सिमिलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो पीयर जिसका नाम दे रहे हैं हम लोग, उसके वैल्यूज के जो रेट ऑफ चेंज है वो उसकी ज़्यादा मतलब अलग हो रही है पीयर्स वाले से। इन दैट केस वार्निंग हैज टू बी क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है सर गॉट माय पॉइंट। Got it, सही है। sir. ये है वन ऑफ द आइडिया सर, आपकी टीम के पास बेहतर आइडियाज आ सकते हैं इससे, तो वी कैन डिस्कस दोज वन आल्सो। Right. ठीक है सर ओके ठीक है। ओके। बाकी पॉइंट्स तो इधर दिया है भी हमको, दीपक साहब ने भी दिया है भी, वो प्रिंट मिला है तो रतन मैं शेयर कर दूंगा। वर्क ऑन दैट द रियल पार्ट। तो टीएसए की बात हम किए थे, और इसमें आप रिसर्च पेपर चाहे जो है कहीं प्रूवन है तो ठीक है, अदरवाइज इस फॉर्मूले से हम लोग फिलहाल जाएंगे। कनाडा की कंपनी कर रहा है, कंपनी कहाँ लगा हुआ है वो थोड़ा सा प्रूफ चाहिए तो क्या लगा हुआ ये मेथड लगा हुआ है। अच्छा तो ऑलरेडी ये वाला यूज हो रहा है, यूज हो रहा है इसमें। लगा कहाँ यूज हो रहा है पता तो नहीं। हाँ वो तो अभी बता देंगे, ये अभी बता दो। लेकिन अभी अब आपका सही डेटा है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है यूज करने के लिए, ये कहाँ किस यूटिलिटी में यूज हो रहा है? ये अभी के लिए इस पेपर में जो बताया था, इट इज मेंशन्ड इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस। मेंशन सो मैनी, कौन सी वाली सो मैनी, कौन सी कंपनी? आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर लेंगे। हाँ मैं अभी डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँगा, बट दीज आर ऑल द प्लेसेस वेयर दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दीज मेनी पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोक्यूबिक पावर प्लांट दे आर वो गिविंग कह रहे हैं उन्होंने इंपॉर्टेंस। बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखे, जिन डॉक्यूमेंट्स में ये 5 बातें जो इस कागज में लिखी गई है वो हर जगह लिखी हुई है, वो ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे किसी कंपनी में यूज हो रहा है। ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है। हाँ वो कह रहे हैं आपने भी लिख दिया, मैंने भी नहीं भी, चारों ने लिख दिया तो हो सकता है चारों एक दूसरे का रिफर करके पे कर। No, it doesn't explicitly say which company is using this method. Yeah. अच्छा। It cannot be shared like that because each company will not be sharing their methodologies.
but it is just a general idea that in the entire United States, certain utilities are using these parameters. These parameters only. These you are able to see the US and Thai utilities, and they are using family failure rate, and they are using age of transformer, and they are not considering solid insulation aging. You know, so it is just giving you an idea on which parameters some people are using and some people are not using. But it is not easy to find out which company is exactly using which methodology. वो तो company का proprietary होगा ना सर. ठीक है, तो हम डिस्कस किए उस पर वर्कआउट कर लेते हैं. इन द मीन टाइम वी मे गेट, हम लोगों को कुछ और भी इनपुट मिलेगा पैनल से बेस्ड ऑन द कोर ग्रुप डिस्कशन जो भी होगा, है ना. अभी के लिए ओके है ना. इंडेक्स आगे की बातें हैं. अभी एक बार टू स्टार्ट विद डेवलपमेंट स्टेज में देखेंगे. मैं तो अभी से स्टार्ट नहीं टीम को कहूँ, क्योंकि मेरे को तो ये सर के आप कंसोर्टियम में भी काम करते रहते हैं, जॉइंट वेंचर में काम और किया हो किसी ने, आपने किया हो, आपके किसी कंसोर्टियम पॉइंट जॉइंट वेंचर पार्टनर ने किया हो किसी ने कहीं. तो हमारे तो इतने से दायरा है ना, आपका दायरा थोड़ा बड़ा है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. ऐसे शकीर भी यूटिलिटी में काम किया हुआ है. हाँ. जो बात कर रहा है तो फिर शरीर के पास भी हो. हाँ, डिस्ट्रिक्ट बागवान किया हो. देख लेते हैं और अपना कंसल्टेंट थोड़ा बात कर लेते हैं. और इनफैक्ट जेडी को ऑनलाइन में रखने का है. ऑलरेडी है. ठीक है. क्योंकि हर में कुछ कराने की जरूरत है नहीं. फिजिकल तो चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ऑनलाइन में रखी है. बस उनको थोड़ा सा पहले बताना है. ठीक है. ठीक है सर. ओके, थैंक यू टीम. थैंक यू. Thank you sir. Thanks.